Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is the very important video of the directional terms and planes commonly used for the location of the body parts. Let's start. Actually, these frames of reference are in relation to the animal itself and apply regardless of the position or direction of the animal. Definition of the terms that follow are illustrated in figure 1 to 13 and apply to quadrupeds यानी फोर फुटेड एनिमल्स। तो ये जो टर्म्स आप पढ़ने जा रहे हैं इनकी खास बात है कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह एक्ट करेंगे। एनिमल किसी भी पोजीशन में और डायरेक्शन में हो उससे मतलब नहीं है, ये एनिमल पर निर्भर करेगा। और ये सब जो है क्वाड्रूपेड्स पे लागू होगा, मीन्स द फोर फुटेड एनिमल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इज क्रेनियल। सिंपली इज direction toward the head. Cranial indicates the direction toward the head. Sorry. Caudal क्या है? Caudal indicates the direction toward the tail. Similarly, rostral and caudal are terms for direction within the head to mean toward the nose and toward the tail. The cerebrum is rostral to the cerebellum. ठीक है, रोस्ट्रल का मतलब है सीधा डायरेक्शन विद इन द हेड बट टुवर्ड द नोज, डायरेक्शन विद इन द हेड to mean toward the nose. Nose means rostral, and if it is toward the tail, then it is caudal. एग्जाम्पल दिया, सेरेब्रम इज रोस्ट्रल टू द सेरेबेलम। सेरेबेलम जानते हैं पीछे की तरफ आया था एंड सेरेब्रम आगे की तरफ, सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ओके, एंड द नेक्स्ट इज मीडियन प्लेन। मीडियन प्लेन इज वेरी सिंपल, the plane which divides the body into equal right and left halves. Very simple. Okay, and sagittal plane. Sagittal plane, any plane parallel to the median plane. Very simple. Sagittal plane is a plane parallel to the median plane. Okay, and what will it do? Nothing. It will also divide the right or left, but unequal right or left. So this plane would uh, would be either to the right or to the left of the median plane. Okay, मतलब मीडियन प्लेन के बगल वाला जो प्लेन होगा सीधे सिंपल है, पैरेलल प्लेन का सैजिटल प्लेन होगा। मीडियन प्लेन का दूसरा नाम है मिड सैजिटल प्लेन। क्या? मिड सैजिटल प्लेन। द नेक्स्ट इज ट्रांसवर्स प्लेन। व्हाट इज ट्रांसवर्स प्लेन? Transverse plane is at right angles to the median plane and divide the body into cranial and caudal parts. A cross-sectional view of the body or the part would be made on the transverse plane. Means ऐसा प्लेन जो राइट एंगल्स पर हो, किसके? मीडियन प्लेन के, और ये क्रेनियल और काउडल पार्ट्स में डिवाइड करें। डिवाइड्स द बॉडी इनटू क्रेनियल एंड काउडल पार्ट्स। क्रेनियल मतलब क्या होता है? टुवर्ड द हेड। काउडल मतलब क्या होता है? टुवर्ड द टेल। ठीक है, तो सिंपल मतलब बॉडी को दो हिस्से में डिवाइड करें। एक आगे वाला हिस्सा हेड, हेड थोरैक्स एब्डोम, थोरैक्स इधर वाला क्या है? एब्डोमेन, पेल्विक, टेल। ठीक है, इस तरीके से ट्रांसवर्स प्लेन हो गया। एग्जाम्पल क्या है, अगर आपको क्रॉस सेक्शनल व्यू चाहिए बॉडी का तो आप ट्रांसवर्स प्लेन में चेक करोगे। ओके, दिस प्लेन गिव्स द क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ द बॉडी। हॉरिजेंटल प्लेन नेक्स्ट। प्लेन क्या करता है? इट डिवाइड द बॉडी टू डॉर्सल एंड वेंट्रल सेगमेंट्स। डॉर्सल मीन्स क्या होता है? डॉर्सल इज द बैक, toward the back side, and ventral is the toward the front or lower side.
इन एनिमल्स, दैट इज quadrupeds में बात कर रहा हूँ मैं इसे, ठीक है। तो ऑल्सो इट इज right angles to median and transverse plane, and this is right angle to both median and transverse plane. In the last I would show you the pictures of these planes, so don't worry, just remember the definitions. Okay, the next is dorsal. Dorsal pertains to the back or upper surface of the animal. Back or upper surface of the animal को जो बात करेगा वो dorsal है, often used to indicate the position of the structure of the body relative to another that is nearer to the back surface of the body. Like example, kidneys are dorsal to the intestine. सॉरी, ओके। तो पोजीशन को बताता है रिलेटिव टू अनदर, जैसे एक सिंपल समझो, बैक और अपर सर्फेस ऑफ द एनिमल, और सब समझो नियर द बैक सर्फेस ऑफ द बॉडी जो होता है वो डॉर्सल होगा। एग्जाम्पल क्या है, किडनीज आर डॉर्सल टू द इंटेस्टाइन। सिमिलरली क्या है, वेंट्रल pertains to the under surface of an animal and edge with dorsal is often used to indicate the position of one structure related to another, the intestine or ventral to the kidneys. ये भी क्या करता है, इंडिकेट करता है पोजीशन को रिलेटिव टू वन अनदर, बट ये क्या होता है, टुवर्ड द लोअर फ्रंट साइड ऑफ द एनिमल, ठीक है। ये होता है वेंट्रल। अब आते हैं मीडियल की तरफ। तो मीडियल, मिडिल क्या करता है, मिडिल और सेंटर ऑफ द बॉडी की तरफ जो इंडिकेट करे, ठीक है। नियरर टू द मीडियन और मिड साइडल प्लेन, सिंपल समझो, जो मीडियन प्लेन की तरफ जितना क्लोज होगा उतना मीडियल होगा। द लंग्स आर मीडियल टू द रिब्स, जो लंग्स हैं वो रिब्स के कंपैरिजन में मीडियल हैं, ऐसी बात है। लेटरल क्या है, लेटरल इज अपोजिट टू द मीनिंग ऑफ मीडियल, दैट इज अवे फ्रॉम द मीडियन प्लेन। लेटरल बहुत सिंपल है, अवे फ्रॉम द मीडियन प्लेन। क्या था, ये टुवर्ड द मीडियन प्लेन था मीडियल, जबकि लेटरल क्या है, अवे फ्रॉम द मीडियन प्लेन, जस्ट अपोजिट है मीडियल का। अब इसमें क्या होगा, एग्जांपल, रिब्स आर लेटरल टू द लंग्स, जो रिब्स हैं वो लंग्स की कंपेरिजन में लेटरल हैं ऑब्वियसली। अब आते हैं सुपरफिशियल। तो सुपरफिशियल परटेन्स टू द सरफेस और टू द स्ट्रक्चर सिचुएटेड नियर द सरफेस। सुपरफिशियल मीन्स क्या है, टुवर्ड द सरफेस, परटेन्स टू द सरफेस, ठीक है, और टू अ स्ट्रक्चर सिचुएटेड नियर द सरफेस। जैसे स्किन इज सुपरफिशियल टू द मसल्स, ऐसी बात है, सबसे ऊपर क्या पाया जाता है, स्किन पाया जाता है, उसके नीचे मसल्स। अब आते हैं डीप पे। तो डीप रिफर्स टू द स्ट्रक्चर सिचुएटेड एट ए डीपर लेवल इन रिलेशन टू ए स्पेसिफिक रेफरेंस पॉइंट। डीप मीन्स दैट इज टुवर्ड द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द बॉडी, ऐसे समझो, मतलब जो गहराई में हो, जिस जिस जहाँ तक पहुँचना मुश्किल हो, ठीक है, अप्रोच जहाँ का कठिन हो, तो वही कर रहा है, दैट इज सिचुएटेड एट डीपर लेवल। डीप रिफर्स टू द स्ट्रक्चर सिचुएटेड एट अ डीपर लेवल in relation to a specific reference point. Example दिया, femur is deep to the quadricep muscles. quadricep muscles की तुलना में femur deeper होता है। जैसे proximal की बात करते हैं, proximal when referring to a part of a limb, artery, nerve means it is nearest to the center of the body or the point of origin. The femur is proximal to the hoof. सिंपल समझो, proximal मतलब होता है जो जो क्या होगा, सेंटर ऑफ द बॉडी के पास होगा, या समझो नियरेस्ट पॉइंट। अब जैसे फीमर और हूफ में कौन पास होगा बॉडी के, ऑब्वियसली फीमर होगा, तो फीमर इज प्रॉक्सिमल टू द हूफ, सबसे बेस्ट एग्जांपल है, फीमर इज प्रॉक्सिमल टू द हूफ। तो वही है कि इट रिफर्स टू द पार्ट ऑफ ए लिम्ब, आर्टरी और नर्व, कोई लिम्ब हुआ, आर्टरी या नर्व हुआ, मीन्स नियरेस्ट टू द सेंटर ऑफ द बॉडी और पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जो ओरिजिन पॉइंट के पास में होगा या सेंटर ऑफ द बॉडी के पास में होगा वो प्रॉक्सिमल होगा, ठीक है। अब आते हैं तुम्हारा नेक्स्ट इज distal. Distal means relatively farther from the center of the body. The hoof is distal to the femur.
जस्ट अपोजिट है प्रॉक्सिमल का, मीन्स फार्दर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ठीक, एग्जाम्पल उल्टा हो जाएगा, हूफ क्या डिस्टल है फीमर का। ठीक है, अब आते तुम्हारे पामर पे। तो पामर रिफर्स टू द caudally facing surface of the forelimb distal to the carpus, joint connecting the radius ulna and carpal. Dorsal refers to its opposite cranially facing side. जो पामर होता है, अब काउडल मतलब क्या होता है, टुवर्ड द टेल। काउडल फेसिंग सरफेस, सरफेस क्या है, परत, ठीक है, ऑफ द फोर लिम्ब मतलब आगे का पैर, डिस्टल टू द कार्पस, कार्पस के डिस्टल क्या होगा, जो अवे होगा सेंटर ऑफ बॉडी से, तो मतलब क्या है, मतलब जो हूफ की तरफ, मतलब ज़मीन की तरफ जो हिस्सा है, कार्पस जॉइंट के जो नीचे वाला हिस्सा है उसका जो पीछे वाला साइड है, काउडल सरफेस है, वो कहलाता है पामर। आई विल शो इन द फिगर, मैं फिगर में दिखाऊंगा आपको, समझ लीजिए कि पामर सरफेस क्या होता है। अब उसी कार्पस जॉइंट के नीचे डॉर्सल बोलते हैं, बट वो क्रेनियल साइड होगा, जो क्रेनियल फेसिंग साइड होगा, डॉर्सल बोलेंगे तो क्रेनियल फेसिंग साइड होगा। तो पामर में फोर लिम्ब की बात होगी, काउडली फेसिंग सरफेस होगा, किसके, कार्पस जॉइंट के नीचे। प्लांटर क्या है, प्लांटर में हाइंड लिम्ब की बात होगी, सिंपल है, जैसे अभी बताया फोर लिम्ब में, यहाँ काउडली फेसिंग सरफेस ऑफ द हाइंड लिम्ब डिस्टल टू द टार्सस, यहाँ टार्सस जॉइंट के नीचे वाले सरफेस पे, ठीक है, इसे हॉक जॉइंट भी बोलते हैं। और इसमें जो डॉर्सल होगा वो क्रेनियल साइड होगा हाइंड लिम्ब का, टार्सस जॉइंट के नीचे। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं तुम्हारा प्रोन और सुपाइन। तो प्रोन क्या है, प्रोन refers to a position in which the dorsal aspect of the body or any extremity is uppermost. प्रोन पोजीशन है जिसमें क्या है कि जो डॉर्सल एस्पेक्ट बॉडी का या किसी एक्सट्रीमिटी, एक्सट्रीमिटी मतलब लिम्स हो गया या हेड हुआ या कुछ और हुआ, उसका जो डॉर्सल पोर्शन है वो ऊपर की तरफ हो। यहाँ पे एनिमल इटसेल्फ इस क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, चाहे वो उल्टा लेटा रहे चाहे सीधा लेटा रहे, पेट के बल लेटा रहे चाहे पीठ के बल लेटा रहे, वही है। तो उसका डॉर्सल एस्पेक्ट क्या होना चाहिए, वो अपर मोस्ट होना चाहिए, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो वो हो गया तुम्हारा प्रोन, एंड डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी और एक्सट्रीमिटीज अपर मोस्ट। अब एक आता है डॉर्सो वेंट्रल व्यू, तो प्रोन कंडीशन में आता है। ये क्या मतलब कैसे आता है, जब रेडियोग्राफ, एंड रेडियोग्राफ इज taken from this position with the film on the ventral aspect is identified as dorsal ventral view। dorsal ventral view क्या है, प्रोन वाली कंडीशन में जब रेडियोग्राफ का जो फिल्म होगा वो वेंट्रल एस्पेक्ट पे होगा, और जो तुम्हारा एक्सरे रेज जो है वो जहाँ पे हिट करेंगे जिस सरफेस पे, डॉर्सल सरफेस से हिट करेंगे, दैट इज द डॉर्सल वेंट्रल व्यू। अब आते हैं सुपाइन की बात करते हैं। तो सुपाइन इज position is the ventral aspect of the body or the palmar or plantar aspect of an extremity is the uppermost। जस्ट ऐसे समझ लो कि यहाँ पे उल्टा है, जैसे समझो पामर और प्लांटर एस्पेक्ट जो होता है अभी बताया मैंने, पर वो अपर मोस्ट हो, सिंपल। ठीक है, तो वो सुपाइन पोजिशन हो गया। वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी वो अपर मोस्ट पे हो तो सुपाइन हो गया। अब इसमें जब रेडियोग्राफ लोगे तो ये क्या कहलाता है, वेंट्रल डॉर्सल व्यू। ठीक, तो ये टर्म्स हो गए तुम्हारे डायरेक्शनल टर्म्स एंड प्लेन्स। नाउ वी विल सी इन द फिगर, all these terms we will understand in the figure, that the most important, so be careful। this is quadrupeds, four-footed animal, simply it's a dog, and see, okay, I will show you, this is caudal। caudal क्या है, toward the tail है, दिख रहा है। cranial क्या है, toward the head है, एरो देखिएगा उसका।
and this transverse plane. See, transverse plane divide the body into cranial and caudal portion, right? Yes. And this is horizontal plane. This divide the body into dorsal and ventral. डॉर्सल इधर है, वेंट्रल इधर, ठीक है। जो पीठ की साइड है वो डॉर्सल है, जो पेट की साइड है वो वेंट्रल है। सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूँ आपको, तो समझने के लिए। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या कर रहा है, डॉर्सल और वेंट्रल में डिवाइड कर रहा है बॉडी को, एंड बहुत अच्छा है। अब देखिए ट्रांसवर्स प्लेन पे आते हैं। तो ट्रांसवर्स प्लेन क्या है, देखिए ये तुम्हारा ट्रांसवर्स प्लेन, एंड यहाँ पे लेटरल और मीडियल देखिए, इसका एरो देखिए, मीडियल क्या है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द बॉडी है। लेटरल का देखिए, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ बॉडी। ओके, डॉर्सल मतलब जो पीठ की तरफ या ऊपर सर देख रहे हैं ना, ये इस वाले सरफेस की तरफ देखिएगा। डॉर्सल, रोस्ट्रल टुवर्ड द नोज, जो नोज की तरफ है, ये देखिए टुवर्ड द नोज, एंड डॉर्सल वेंट्रल, या दिस इज प्रॉक्सिमल, दिस इज डिस्टल। प्रॉक्सिमल इज क्या है, देखिए ऊपर की तरफ एरो है, डिस्टल का नीचे की तरफ एरो है। अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ बॉडी है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ बॉडी, या ओरिजिन, पॉइंट ऑफ ओरिजिन की तरफ है, ऊपर प्रॉक्सिमल दिख रहा ना। तो अब देखिए ये है तुम्हारा प्लांटर सरफेस। प्लांटर में हाइंड लिम्ब की बात हुई थी, तो ये टार्सस जॉइंट है, इसके नीचे वाला जो काउडल सरफेस होता है वो प्लांटर कहलाता है। सिमिलरली कार्पस जॉइंट के नीचे जो काउडल सरफेस होता है वो क्या कहता है, पामर, पामर कहलाता है, बट फोर लिम्ब में। तो ये सब आपको याद रखना। अब मिडन प्लेन, मिडन प्लेन क्या करता है आपको, ये राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड करेगा। राइट और लेफ्ट सिंपल है, आप समझ सकते हैं, राइट लेफ्ट। तो ये था। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।